It's a beautiful complex, but it has an explanation. It is not every day that we have somebody as illustrious, heroic and iconic as Mr. Vivek Ranjan Agnihotri ji. The hero is in front of you, and before he sets the stage on fire, let me give a brief introduction because I would like him to address you, energize you, enthuse you. Who would not know Mr. Vivek Ranjan Agnihotri? If I were to give all the accolades, perhaps I will eat up the entire time. So brevity being the soul of wit, all of you must have heard Buddha in a traffic jam on urban Naxals. I have fought Naxalism almost all my life. I did not realize there's something like known as urban Naxals. But to you, sir, I will tell that every time I arrested a Naxal leader, there would be hundreds of youngsters wearing khadi kurta, khadi pajamas, and you would know also khadi jholas, the Vinoba Bhave jholas, Kolhapuri chappals, speaking perfect clipped English Oxonian, but raising slogans and also raising anti-national slogans wanting the release of the wanted, etc. I did not realize how did they descend from the skies, what was the mechanism and the dynamics. But your book, Urban Naxals, which is a bestseller, an all-time bestseller, even taught an hard-boiled police officer like me what urban Naxalism and the support system. But later for the next better day. Tashkent files. I was in class 10 when Shastri ji died at Tashkent after the Tashkent declaration. But that mystery still remained unsolved, and it was left to Mr. Vivek Ranjan ji to make a film on that and write a book, Who Killed Shastri ji? The vaccine war, on the heroism of our biomedical scientists, our doctors, that India became the pharmacy to the world. And the book also is again a masterpiece, The Vaccine War. The Kashmir Files. I don't see films, and I don't think I saw any film after Ganga Jamuna. But this was one film that I did not miss and saw it twice. Every shot will appeal to your conscience and shake you to your beings that a stupefied nation, a station lullabied into silence and witnessed the worst ever genocide that happened in the country. But what is heroism? That you choose to speak when everybody is silent, and you choose to be silent when you don't have anything to speak. The stripping of Draupadi, all the stalwarts were absolutely quiet and did not raise a finger except Vidur. You have the Vidur in front of you, the hero. And what did Vidur say? Are Murkh, Yamraj ko dawat mat de. Are Murkh, Yamraj ko dawat mat de. Coming down to विवेक जी, आपकी धर्मपत्नी पल्लवी जोशी को सब जानते हैं। वो अपने में ही बहुत उत्कृष्ट और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रतिभा की धनी सिने तालिका भी है, और आपका बहुत भरपूर योगदान भी कर रही हैं। आदरणीय विवेक रंजन जी सीबीएफसी के डायरेक्टर भी हैं, डॉक्टरेट भी है आपके पास, और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम मुझे कहने से पहले आप खुद देखेंगे किस तरह से आप जिस रूप और भाव में आज इस सभागार में आए हैं, इतना भरा हुआ तो मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन यहाँ से ज़्यादा अधिक वैभवशाली, धनी, उपलब्ध और धनवान होकर के लौटेंगे। यहाँ से एक एक शब्द विद्वान के साथ 2 मिनट बताया हुआ समय 50 ट्यूटोरियल से ज़्यादा होता है। मुझे विश्वास है कि ये सेशन आपके किसी एक डिग्री से कम नहीं होगा। मेरा आपसे निवेदन है, आपको
विवेक जी फोटो ऑफ सेल्फीज का भी पूरा अवसर देंगे। मन में जो भी आपके विचार हैं सिनेमा जगत के बारे में, अपने बारे में, व्यक्तिगत सामूहिक, उसके बाद पूरा अवसर मिलेगा, लेकिन अनुशासन के साथ। अनुशासन की लक्ष्मण रेखा आज तक पार नहीं हुई, मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन रोज हमारे यहाँ विवेक जी ऐसे आइकॉन्स नहीं आते हैं। तो प्रतिभा जी से मेरा निवेदन है कि चट्टान की तरह विवेक जी के साथ खड़ी रहेंगी और उनको सकुशल 11:35 पे अपने वाहन में सकुशल विदा करेंगी। इसी शुभकामनाओं के साथ क्या मैं निवेदन करूं आदरणीय विवेक जी कि कृपया अपने संबोधन से हमारे बच्चों को, फैकल्टी को आशीर्वचन देने की कृपा करें। Hello everyone. I would like to thank Noida International University. What a wonderful complex. In last 10 days I have been to almost 12 or 13 different universities and colleges. But this is so wonderful, and I am a film director, so I can catch the vibes the moment I enter somewhere. I am gifted with that. So as I entered, I never ever take photo or video of anything, but I somehow naturally felt like taking it. I wanted to show it to my children that there exist such wonderful universities. I'm sure you guys must be having good time here. Thanks to Professor Dr. Vikram Singh ji, a great inspiration, a great voice, motivator. मैं कितनी तारीफ करूं, टीवी में देखता था, कुछ वक्त पहले मिला भी, लेकिन आपने एक बड़ा बुरा काम कर दिया, मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी कि इट्स गोइंग टू बी अ लाइफ लेसन ऑल्सो। तो मैं पता नहीं उसको किस तरह से निभा पाऊंगा। लाइफ लेसन उन्हीं लोगों को देने का हक होना चाहिए जिनने एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी है। पता नहीं मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है। एंड थैंक यू डॉक्टर प्रोफेसर उमा जी, वेरी स्वीट ऑफ यू। एक जो शक्ति की बात चल रही थी पिछले 10-12 घंटे से, तो जो शक्ति है उसको हमेशा दुर्गा के ही रूप में नहीं देखना चाहिए। शक्ति जीवन में सबसे पहली जो होती है वो सरस्वती की होनी चाहिए, ज्ञान की। उसके बाद फिर लक्ष्मी और दुर्गा आनी चाहिए। ये दुर्भाग्य की बात है, आज की तारीख में हमने सरस्वती को हटा दिया, दुर्गा और लक्ष्मी की सब पूजा करते हैं। इलेक्शन का वक्त है, शक्ति को गलत मत समझ लीजिएगा। शक्ति कोई बहुत ऐसा त्रिशूल लेके लोगों को मारने वाली नहीं होती है। शक्ति आपकी माँ जो त्याग और तपस्या करती है। जरा अपनी माँ के बारे में सोचिए एक सेकंड के लिए, कितनी तपस्या और त्याग आपकी माँ ने की है, जिसके कारण आज आप यहाँ बैठ के इतनी अच्छी शिक्षा ले रहे हैं और कल को आप बड़ी बड़ी जगह काम करेंगे, और तब जो आनंद आपकी माँ को आएगा और आपको आएगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। वही ईश्वर है। ईश्वर किसी ने देखा ही नहीं है, पर मुझसे कोई लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ ईश्वर मैंने देखा है मेरी माँ के रूप में। और त्याग की जो क्वालिटी होती है, जो केयर की क्वालिटी होती है, ये शक्ति उसको बोलते हैं। और मैंने कल जब उमा जी से फ़ोन पे बात की, सबसे पहले उन्होंने कहा आप जा रहे हैं, मैं आपके लिए खाना पैक करा दूंगी, कर दूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, क्योंकि मैं इतना ट्रैवल करता हूँ, खाने की बड़ी समस्या रहती है मेरी लाइफ में। तो जो केयर करती हैं, ये जो फेमिनिन एनर्जी है, जो स्त्री शक्ति है, ये हम सब में, ऐसा नहीं कि औरतों में ही होती है, आदमियों में भी है। तो आदमियों को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये लोगों की केयर करने का काम सिर्फ औरतों का जिम्मा है। ये गलत बात है, इसे चेंज करना चाहिए। एनीवे, पहले ये बताइए, मैं हिंदी में बोलूँ, इंग्लिश में बोलूँ, या क्या करूँ? हिंदी में बोलूँ? चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, नहीं दोनों में ठीक है, कर लेंगे हिंदी इंग्लिश, पर एक थॉट प्रोसेस जो है वो, चलिए जो आप में सुविधा है। तो सबसे पहले मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत दिनों बाद इतनी तादाद में जैम पैक्ड हॉल में बात करने जा रहा हूँ। तो मैं ना तो फिल्म मेकर की तरह बात करूँगा आपसे, और ना ही मेरी कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। लोगों को गलत फहमी है ऐसी, लेफ्ट विंग, राइट विंग, मैं सब कुछ नहीं। मेरा एक ही विंग है, वो है भारत विंग। उसके अलावा मेरा कोई और विंग नहीं है। और भारत जब हम बोलते हैं, एक तो मैं इंडियन नॉलेज सिस्टम, अब ये इतना फेमस हो गया ये टर्म, पर इससे मेरा एक प्रॉब्लम है, ये टेक्निकली गलत है। इसलिए गलत है कि ये इंडिया शब्द ही बहुत बाद में आया इस्तेमाल में। तो जब हम इस नॉलेज सिस्टम की बात करते हैं, तो किस नॉलेज सिस्टम की बात करते हैं?
क्या इसमें मुगल आर्किटेक्चर भी इन्वॉल्व है? क्या इसमें कॉलोनियल नॉलेज भी इन्वॉल्व है? ये कट ऑफ लाइन कहां बनती है? कहां तक की नॉलेज को हम इंडियन नॉलेज सिस्टम मानते हैं? तो अक्सर मैंने देखा है लोग जब इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करते हैं तो वो एंशिएंट नॉलेज सिस्टम की बात करते हैं कि भाई हमारे शास्त्रों में पुराणों की नॉलेज की सिस्टम। लेकिन इंडियन नॉलेज सिस्टम में तो फिर जैनिज्म की जो नॉलेज है वो आनी चाहिए, बुद्धिज्म की भी आनी चाहिए, और कई सारे पंथ हैं जो नास्तिक हैं उनकी भी आनी चाहिए, अद्वैता की भी आनी चाहिए, द्वैता की, वो सब तो आती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम ये इंडियन नॉलेज, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं कहाँ आपको बताना चाहता हूँ, जो हाइपोथेसिस आपको बताना चाहता हूँ, मकसद वो है मेरा। तो जब हम कहते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि दुनिया को ये ना, हम हिंदू नॉलेज सिस्टम बोल देंगे तो लोगों को लगेगा ये कम्युनल लोग हैं इसलिए हम इंडियन नॉलेज सिस्टम बोल रहे हैं। इसका जवाब मुझे कोई नहीं दे पाया। बड़े बड़े विद्वानों से बात करता हूं, वो ये कहते हैं कि सारी दुनिया में लोग कैसे समझेंगे भारतीय नॉलेज सिस्टम, करेक्ट। लेकिन जब आप किसी और कंट्री की जब बात करते हैं, किसी और, क्या ब्रिटेन इंपीरियल नॉलेज सिस्टम बोलता है उसको? क्या बोलते हैं? ये जो शब्द है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं शब्दों से हमारा वर्ल्ड व्यू बनता जाता है धीरे धीरे, और हम अपने पोटेंशियल और अपने लिमिटेशन को उन शब्दों से जोड़ने लगते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और लगातार हर आदमी ये बोलता रहे, तो आपके धीरे धीरे पर्सनैलिटी वैसी एक डेवलपिंग, थोड़ी मीक बनने लगेगी। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भारत एक डेवलप्ड कंट्री है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी हर चीज बदल जाएगी, करेक्ट। जब मेरी बेटी पैदा हुई थी, मेरी पहली बेटी पैदा हुई, तो सब लोग आके बोलते थे, अरे वाह तुम्हारे घर में तो लक्ष्मी हुई है। अरे और लड़कियां, कई लोग आके बोलते, अरे लड़कियां कहीं लड़कों से कम है क्या? प्रॉब्लम यहां पे है। आज जो नारी की जो स्थिति है देश में, प्रॉब्लम यहां से शुरू होता है। लड़कियां क्या किसी से कम है? इसमें कम ज्यादा की बात क्या है भाई? ये कोई स्केल तो नहीं है आप तौल रहे हैं। यहां ये लड़के बैठे हैं, इनके बगल में ये लड़कियां बैठी हुई हैं। हम ये तो नहीं कह सकते हाइट के हिसाब से आप तय कर रहे हैं कौन किससे कम ज्यादा है, किससे कम नहीं है। जो बोलने वाला है वो मर्द है, लेकिन औरतें भी इस बात को बोलती हैं। तो इसलिए जार्गन और शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको लेके सबसे पहले स्टूडेंट्स को ही क्वेश्चन करना चाहिए। तो मैं आज ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं चाहता हूं आप ज्यादा सवाल पूछें। मैं 2-3 आपके सामने अपने थॉट्स रखता हूं, और उसके बाद आप जो चाहें सवाल करिएगा। तो जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, इसको कायदे से है तो ये हिंदू नॉलेज सिस्टम, क्योंकि जो बुद्धिज्म भी है वो भी क्रिस्टलाइजेशन है हिंदू नॉलेज का। मैं भी कुछ वक्त पहले केरला गया था, तो वहां पे जो घर हैं उनका जो आर्किटेक्चर है वो आज 800 साल, हजार साल के बाद भी उसकी जो टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर है वो इतना महान है। आपने कई इंडियन टेम्पल्स देखे होंगे जो एक एक रॉक से काट के बनाए गए हैं, ओके, सिंगल रॉक्स। आप खजुराहो में जाइए तो आप जो स्त्री का वर्णन है, जो औरतों की जो स्कल्पटिंग है, वो एक हमेशा ट्रायंगल की तरह खड़ी होती हैं। दैट ट्रायंगुलर फॉर्म, आज जो मॉडर्न फैशन डिजाइनर्स हैं आप देखिए जो सिलुएट बनाते हैं, दैट इज द बेस्ट मोस्ट करेक्ट फॉर्म टू कैरी फैशन, ओके। और वही आपको वहां मिलेगा। आप देखिएगा खजुराहो में नहा के स्त्री निकली है, उसके सारे बाल दिखेंगे और उसमें गिरती हुई बूंदें भी दिखेंगी, और उसके हाथ में एक मिरर है, उसमें उसकी शक्ल भी दिखेगी। ये आज से कितने हजार साल पुरानी बात है। इसको हिंदू आर्किटेक्चर बोलते हैं, लेकिन ये पहले उसमें आर्किटेक्चर में पढ़ाया जाता था, पर धीरे 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 हमने उसको खत्म कर दिया। और जैसे ही हमने उसको खत्म कर दिया, आज आप देखिए भारत के किसी भी शहर में आपको इंडियन आर्किटेक्चर नहीं मिलेगा। आप लोग बात कर लीजिए, मैं बात कर लूं राजू, आपको आज की तारीख में किसी भी इंडियन सिटी में इंडियन आर्किटेक्चर नहीं मिलेगा। व्हाट यू विल फाइंड इज वेरी अगली वेस्टर्नाइज कैपिटलिस्टिक बिल्डिंग्स ऑफ ग्लास एंड स्टोन। पिछले 75 साल में हमने एक भी ऐसी बिल्डिंग नहीं बनाई है जिसके ऊपर आगे 100-200 साल तक आप गर्व कर सकें। जिन पे आप गर्व करते हैं वो सब आजादी के पहले या तो ब्रिटिश लोगों ने बनाई थी, या मुगल्स ने बनाई थी, या हिंदू आर्किटेक्चर की बनी।
मुझे कोई मुगल इस बिल्कुल उसमें मत पड़िएगा रिलीजन में, मुझे मुगल आर्किटेक्चर से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्रिएटिविटी का कोई रिलीजन नहीं होता है, इस गलतफहमी में मत रहिएगा। मुगल आर्किटेक्चर, मुगल कैलीग्राफी इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स इन द वर्ल्ड, अनमैचेबल। ब्रिटिश गॉथिक आर्किटेक्चर हैज अ वेरी यूनिक थिंग अबाउट इट, बट क्या हमने किया है? जितने अच्छे गार्डन्स इंडिया में हैं वो सारे के सारे आजादी के पहले के हैं, सारे। तो मुझे यह बताइए, ये जो अगली शहर देखते हैं आप, निकलिएगा, एस्थेटिक्स। आज इंडिया का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है पानी, गंदा पानी, गंदी हवा के अलावा एस्थेटिक्स है। हम जब कुछ कंज्यूम करते हैं तो हम सिर्फ खाना कंज्यूम करते हैं, हम कभी ये नहीं सोचते हमारे कान क्या कंज्यूम कर रहे हैं, हमारी आंखें क्या कंज्यूम कर रही हैं, हमारा दिमाग क्या कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि हम लोग एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में फंस चुके हैं जो माइंड और बॉडी को अलग अलग करके देखता है। कहता माइंड एंड बॉडी। आपने कभी सुना है स्टमक एंड बॉडी? नहीं ना। लंग्स एंड बॉडी सुना है? तो ये माइंड है कहां से? आप नहीं होते तो क्या माइंड रहता है? माइंड कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आपसे अलग है, इट्स नॉट सेपरेट फ्रॉम यू, ये तो आपके ही अंदर है। तो आप अपने दिमाग में जो डाल रहे हैं, तो ये जो जिसको हम इंडियन नॉलेज सिस्टम बोलते हैं, क्या आपको कहीं दिखता है? ये नहीं दिखता। इसलिए नहीं दिखता क्योंकि हमको यही नहीं पता है हमारी असली नॉलेज क्या है। हमने हर चीज को आज एक टीवी, सॉरी मैं थोड़ा, आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगेंगी सुनने में, जो लोग बहुत ज्यादा रिलीजियसली और पॉलिटिकली सेंसिटिव हैं, राइट विंग लेफ्ट विंग वाले हैं, उनको शायद मेरी बात आहत भी करे, लेकिन एज अ स्टूडेंट आहत होना बहुत जरूरी है। यू शुड बी हर्ड as many times as possible in life। आपको मैं ये बताता हूं, जिसको हम अपना ज्ञान बोलते हैं, नॉलेज बोलते हैं, वो है क्या? मैं महीने में 15-20 दिन घूमता हूं, लोगों को बताता हूं, सारे वर्ल्ड में जाता हूं, बिकॉज मेरा ऐसा विश्वास है कि जो हिंदू फिलॉसफी है, और अगर यहां कुछ मुस्लिम या क्रिश्चियन बच्चे हैं तो बिल्कुल गलत फहमी में मत पड़िएगा। हिंदू फिलॉसफी का मतलब अगर आप उसको रिलीजन से जोड़ रहे हैं, वर्शिपिंग से, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं बात कर रहा हूं, सारी दुनिया के लोगों ने कहा, सिंध के इस तरफ जो लोग रहते हैं वो हिंदू हैं, तो मैं जो एक ग्लोबल कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू का है, मैं उस लेवल से ज्योग्राफिकल बात कर रहा हूं। तो जो हिंदू फिलॉसफी है, ये वर्ल्ड की सबसे एडवांस्ड फिलॉसफी है, जिसको आज लेटेस्ट मोस्ट मॉडर्न साइंस जो है वो भी वहीं आके आज खड़ा हो रहा है। फर्क ये है कि वो धीरे धीरे डिस्कवर करते 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 अब वहां पहुंच रहे हैं, और यही बात हमने कई हजार वर्ष पहले समझ ली थी। मैं आपको सिर्फ 2-3 चीजों के बारे में बताऊंगा, ज्यादा करेंगे तो घंटों घंटों बीत जाएंगे। सबसे पहला, आपने देखा होगा आजकल एक बड़ा फैशन है, आप लोगों से बात करिए तो कहते हैं कि मैं सनातनी हूं। क्यों है? क्योंकि सनातन धर्म है हमारा। अब ये धर्म क्या होता है और सनातन क्या होता है, इसके बारे में किसी को पता नहीं है। अब टीवी में लोग बकबक करते हैं तो लोगों ने सीख लिया है, और थोड़ा अच्छा सोशल मीडिया में लगा दो गेरुआ अपना भगवा झंडा और लिख दो सनातनी जय श्री राम, तो एक वैलिडेशन मिलता है। पर आप तो डम होते जा रहे हैं, आपके दिमाग में तो मूर्खता घुसती जा रही है, आपको असली पिक्चर तो कोई दिखा नहीं रहा है। करेक्ट? देखो, सनातन धर्म कुछ नहीं होता है, हमारे पूरी जो बुनियाद है वो धर्म पे बेस्ड है। और धर्म का क्या मतलब होता है, ये शास्त्रों और पुराणों में जाने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बताओ, अच्छी हवा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? करेक्ट? तो किसी का धर्म होना चाहिए आपको अच्छी हवा देना। किसका धर्म होना चाहिए? जिसने वो जिम्मेदारी ली है और जिसने कहा है मैं आपको अच्छी हवा दूंगा, उसका धर्म आपको अच्छी हवा देना होना चाहिए। अगर वो अच्छी हवा नहीं दे रहा है तो एक देश के अच्छे नागरिक होने के नाते उस विषय में चिंता करना, आवाज उठाना आपका धर्म होना चाहिए। आज आप स्टूडेंट हैं, एज अ स्टूडेंट आपका जो धर्म है वो सिर्फ एक ही होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सवाल उठाना, एक्सपेरिमेंट करना, सेल्फ लर्निंग करना, एक क्रिटिकल थिंकिंग रखना। सारी दुनिया क्या चाहती है कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग खत्म हो जाए, आप सोच ना सकें। कौन? कैपिटलिज्म भी यही चाहता है, क्योंकि जिस कॉर्पोरेट में आप जाएंगे उन्हें आपकी लॉयल्टी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए?
जिस समाज में आप रहते हैं उनको आपकी लॉयल्टी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं, तुम राजपूत लड़के हो, राजपूत लड़की हो, इसलिए तुम्हें ऐसे बिहेव करना चाहिए। तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा धर्म ये है, तुम उस जात के हो, तुम्हारा धर्म ये है। हम पंजाब वाले ऐसे होते हैं, हम साउथ वाले ऐसे होते हैं। हम लोगों ने तरह तरह के स्टीरियोटाइप क्रिएट करके वी वांट यू टू फॉलो दोज लॉज, राइट? इंसान का सबसे पहला धर्म जो है अद्वैता, जो हमारा जो हिंदू फिलॉसफी है, उसके हिसाब से एक ही धर्म है, टू मूव फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज, अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाना। यहां जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, मुझे बताओ क्या यह बात सही है कि गलत है? इसका आप मुझे बताइए, किसी वेद या पुराण या शास्त्र या कुरान, इनसे कुछ लेना देना है? करेक्ट? यह है इंडियन नॉलेज सिस्टम, इंडियन चूंकि नाम लिखा है, पर भारतीय नॉलेज सिस्टम। यहां से हर चीज शुरू होती है, हर चीज यहीं से शुरू होती है, अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाना। पूरी मैं महाभारत फिल्म बना रहा हूं अभी, तो जितने वर्जन्स हैं, वी आर स्टडिंग, बड़े 2 साल से रिसर्च चल रहा है हमारा, जितने वर्जन हैं, एक ही बात मुझे समझ में आई उससे, जो पढ़ के सारी की सारी, कि द ओनली पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू गेन नॉलेज। और ये नॉलेज कैसे आती है? ये नॉलेज ऑफ कोर्स स्कूल में आप आते हैं तो आपको एक तरह की नॉलेज आती है जिससे आप दुनिया में कैसे जिया जाए, कैसे स्किल सीखा जाए। आप अगर कारपेंटर बनना चाहते हैं, समझिए, आप एक अच्छी कुर्सी बनाना आपका धर्म होना चाहिए। वो कुर्सी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि कम से कम पैसे में बैठने वाले को ज्यादा से ज्यादा आराम दे, और जो बहुत ड्यूरेबल हो, यही धर्म होना चाहिए उसका। और वो इतनी एकाग्रता और खूबसूरती से उसको वो चीज बनानी चाहिए कि जब भी उसे कोई देखे तो उसके चेहरे में, उसके मन में एक प्रसन्नता का भाव हो। ये एक कारपेंटर का धर्म है। करेक्ट? तो धर्म की परिभाषा उपासना, मंदिर, रिलीजन, इनसे नहीं है। धर्म का मतलब है कि तुम जो कर्म कर रहे हो, क्या वो तुमको ज्ञान की तरफ ले जा रहा है। अब ये ज्ञान क्या है, किसको आप ज्ञान कहते हैं? तो जब इंसान बना तो बेसिक एनिमल इंस्टिंक्ट पे हम जीते हैं। जब पैदा होते हैं, आपको भूख लगी, आपने जाके खाना खा लिया, और भूख लगी और ज्यादा खाना खा लिया। आज ओबेसिटी का प्रॉब्लम क्यों है बताइए? क्यों डायबिटीज का इतना प्रॉब्लम है? क्यों लोग सिगरेट पीना नहीं रोक पाते हैं? क्यों लोग शराब पीना नहीं रोक पाते हैं? क्योंकि वो एनिमल इंस्टिंक्ट पे जिंदा। मन किया यार चलो आज पी लेते हैं, आज गम है पी लेते हैं, आज खुशी है पी लेते हैं। करेक्ट? हम अपने ही शरीर को खराब कर रहे हैं। मतलब आपके पास एक कार है फरारी, और आप उसको कहीं भी ठोक देते हैं, आप उसमें पेट्रोल की जगह डीजल डाल देते हैं, आप उसकी सर्विस नहीं कराते हैं। अब आप बताइए आप कैसे धार्मिक व्यक्ति हैं? तो जो व्यक्ति अपने शरीर का, जिसके अंदर आपका मन बसता है, जिसके अंदर आपका आत्मा बसती है, और जिस शरीर के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं, सबसे पहला धर्म, बाकी सब बकवास है, सबसे पहला धर्म है आपका अपने शरीर का ख्याल रखना। करेक्ट? क्योंकि आपका अगर शरीर ही सही नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? आज आप सब लोग यहां भारत में सबसे अधिक एनर्जेटिक कोई व्यक्ति आप देखते होंगे तो भारत के प्रधानमंत्री को देखते होंगे। उनके कामों को एक सेकंड किनारे करते हैं, उसमें पॉलिटिकल ओपिनियन आ जाती है, तो पॉलिटिक्स को जरा किनारे रखते हैं हम यूनिवर्सिटी में। लेकिन एक चीज को तो वर्ल्ड में कोई भी नहीं डिनाई कर सकता, उनके दुश्मन भी, कि एनर्जी इस उम्र में हो तो ऐसी हो। करेक्ट? क्यों? क्योंकि वो अपने शरीर का ख्याल रखते हैं। मैं 24 घंटे काम करता हूं, मेरे घर में सब यही परेशान रहते हैं, अरे भागते रहते हो। ऐसा नहीं है, मेरे में उनसे 10 गुना ज्यादा एनर्जी है, क्योंकि मैं 24 घंटे मैं क्या खा रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं, मैं क्या पढ़ रहा हूं, इस बात का बहुत ख्याल रखता हूं। जब ये गंदे गंदे साइन बोर्ड्स देखता हूं लगे हुए सड़कों पे, पॉलिटिकल पोस्टर्स, ये मैं आंखें बंद कर लेता हूं, मैं देखता भी नहीं हूं। मैं क्यों अपने दिमाग के अंदर ये गंदे पोस्टर्स देख के क्यों अपने दिमाग को पोल्यूट करूं? ऐसे क्या कमी है पॉल्यूशन की? मैं इसको अपना धर्म समझता हूं। ये डे टू डे लाइफ में ये धर्म है। नंबर 1, आपके शरीर के अंदर क्या जा रहा है, आपके कान से क्या जा रहा है। जो गांधी जी के 3 बंदर थे बहुत अच्छे थे,
ठीक है, उसका फिर हंसी मजाक उड़ा के हमने उसको खत्म कर दिया, बहुत अच्छा था। बुरा मत देखो, बुरा का मतलब ये नहीं कोई गाली दे रहा है, बुरा का मतलब गलत गंदा दृश्य है वो भी मत देखो। ऐसी वो बात जो तुमको अपने लक्ष्य से इधर उधर कर रही हो वो बात मत सुनो, और वो कभी ऐसी बात मत बोलो जिससे दूसरा आहत हो। इसलिए हमारे यहां इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय नॉलेज सिस्टम में एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है सत्य प्रिय वचन। सत्य भी बोलो तो इतने प्रिय तरीके से बोलो कि सामने वाले को बुरा ना लगे। यह आपका धर्म है। किसी का दिल तोड़ना आपका धर्म नहीं है, आपका धर्म लोगों के दिल जोड़ना है। तो सबसे पहली बात तो शरीर आ गई। इसके बाद दूसरा जो धर्म एज अ स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूं, आपका जो होना चाहिए, एक हमारे ही नॉलेज सिस्टम का कॉन्सेप्ट है शास्त्रार्थ। और ये एक ऐसी चीज है जो मैं देख रहा हूं आजकल धीरे धीरे उसका पतन हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। डिक्लाइन कई कारणों से हो रहा है, आपकी भी गलती नहीं है। अगर आपको चारों तरफ से गुंडे घेर लें तो आप कब तक लड़ सकते हैं उनसे, राइट? वो देखिए मैडम बैठी है यहां पे, रेसलिंग की चैंपियन है, पर अगर आप बताइए अगर 25 गुंडे आपको घेर लें तो आप लड़ पाएंगे उनसे? आप नहीं, करेक्ट? आज समस्या क्या है इस विश्व की कि चंद लोगों ने, चंद लाइंस ऑफ टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया जिसमें नंबर 1 है, फिर मीडिया जो है वो, फिर आसपास जो आपके मैसेजिंग है, आपको इतना घेर लिया है। क्योंकि आज की तारीख में जैसे एक वक्त में जमीन सबसे कीमती रिसोर्स होता था, उसके बाद सोना सबसे अधिक कीमती रिसोर्स बना, उसके बाद ऑयल सबसे अधिक कीमती रिसोर्स बना, करेक्ट? जिसके बाद तेल था, वो अरबपति हो गए आज वो कंट्रीज। जंगल यानी वो रेगिस्तान था, आज देखिए क्या है वो। जब सोना आया कैलिफोर्निया में और जहां जहां आया वहां देखिए क्या क्या हो गया। जिनके पास जमीन थी वो जमींदार आज भी बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, ठीक है? आज की तारीख में आपको समझना, ये कोई स्कूल प्रोफेसर टीचर आपको नहीं बताएगा, ये मैं बता रहा हूं। आज की तारीख में सबसे ज्यादा कीमती चीज है आपका दिमाग, योर माइंड। सारा सिलिकॉन में जो $billion का रिसर्च हो रहा है वो सिर्फ इसी चीज पे हो रहा है, हाउ टू गेट योर माइंड शेयर। समझे आप? माइंड शेयर मतलब आपके दिमाग का हिस्सा, कैसे आपको इन्फ्लुएंस किया जाए, करेक्ट? इन्फ्लुएंस कैसे करें? अगर आप शास्त्रार्थ पे विश्वास रखते हैं, आप हर चीज पे सवाल पूछते हैं, जैसे मैं कुछ भी बोल रहा हूं, मुझे बहुत खुशी होगी खड़े होकर कोई स्टूडेंट ये बोले आपने जो कुछ भी बोला बट हाउ डू यू नो दैट इज ट्रू। आप एक ही सवाल जिंदगी में पूछना है आपको, ये आपका धर्म होना चाहिए, हाउ डू यू नो दिस। जब भी कोई आपको कोई बात बोले, बोलो हाउ डू यू नो दिस। कोई न्यूज आप पढ़ते हैं, कोई बोलता है कि भाई वहां वो आदमी ये कर रहा था इसलिए उसकी पिटाई कर दी, कोई बोले नहीं वो इसलिए कर रहा था वो कर दी। आप बस ये पूछे हाउ डू यू नो दिस मिस्टर टाइम्स ऑफ इंडिया, हाउ डू यू नो दिस, करेक्ट? कोई आपसे बोलता है ये आदमी अच्छा है वो आदमी बुरा है, बस इतना ही पूछो हाउ डू यू नो दिस, करेक्ट? ये आपका धर्म होना चाहिए एज अ स्टूडेंट। लेकिन अगर आप ये पूछेंगे तो अगर कोई कैंपेन चल रही है, कोई ट्रेंड चल रहा है, तो आप अगर ये सवाल पूछेंगे तो ट्रेंड चलेगा कैसे? एल्गोरिथम सिर्फ नेगेटिविटी को प्रमोट करती है, सिर्फ, और कुछ करती नहीं। आप लिख लीजिए सुबह गुड मॉर्निंग, क्या बोलते हैं, जो मैं अभी बातें कर रहा हूं ये आप लिख के देख लीजिए, एक आदमी नहीं पढ़ेगा। मैं क्रिएटिव कॉन्शियसनेस पे काफी लिखता हूं, जो अगर आप सोशल मीडिया मुझे फॉलो करें, सुबह सुबह लिखता हूं, क्योंकि सुबह आदमी का दिमाग खाली रहता है तो वो रिसीव करता है। आप देख लीजिए उसको कितने लोग पढ़ते हैं और कितना फॉरवर्ड करते हैं और कितना रिव्यू करते हैं। और एक पॉलिटिकल कमेंट लिख दूं जिसमें किसी के ऊपर आक्षेप लगता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और देख लीजिए वो कितना चलता है। आप गाली लिख दीजिए, देखिए क्या होता है। आप गुडनेस, अच्छी चीज की बात करिए, आप कहिए आज मैंने 4 बच्चों को, कुछ गुंडे पीट रहे थे, मैं जाके उनको बचाया, आज नहीं चलेगा, कोई नहीं देखेगा। आप लिख दीजिए 4 हिंदू बच्चों को 4 मुस्लिम बच्चे पीट रहे थे, मैंने उन्हें बचाया, और देखिए लाखों में आपका ना हो जाए व्यूज, तो शाम को कुछ रिपोर्टर्स भी आ जाएंगे आपके घर इंटरव्यू लेने। नेगेटिविटी को, और ऐसा नहीं है इंडिया का, अमेरिका में ब्लैक और व्हाइट के प्रॉब्लम को कर रहे हैं, जहां ब्लैक एंड व्हाइट प्रॉब्लम नहीं, वहां इलीगल माइग्रेंट्स को लेकर कर रहे हैं, कहीं औरतों के वर्सेस कर रहे हैं, कहीं किसी ना किसी से लड़ाई करवा रहे हैं। सिलिकॉन वैली में दे आर डोपामिन लैब्स, कैन यू बिलीव इट? आप कितनी चारों तरफ दुश्मनों से घिरे हुए हैं
और इतने हम लोग इस लेवल पे आके खड़े हो गए हैं कि हम अपने असली दुश्मन को भी नहीं पहचान पा रहे हैं। हमारा दुश्मन बैठा है सिलिकॉन वैली में, और आप यहां टीवी में रोज रात को हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहे हैं कि इन लोगों के बीच में प्रॉब्लम वहां नहीं है। आपका दुश्मन है बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके, आप भी गूगल कर लीजिएगा मेरे जाने के बाद, कोई इसमें ऐसी बात नहीं, मैं आपको कोई नई बात बता रहा हूं। दे आर डोपामिन लैब्स। डोपामिन लैब क्या होता है? डोपामिन लैब ये होता है कि आप जब सोशल मीडिया में बार बार खोलते हैं उसको, एडिक्शन जैसे शराब के साथ होता है, तीसरे चौथे पांचवें पैक के बाद चढ़नी बंद हो जाती है तो आदमी और पीता है, फिर स्ट्रॉन्ग पीने लगता है, जो ड्रग्स के साथ होता है, जो सिगरेट के साथ होता है, जो सेक्स के साथ होता है। तो कोई चीज रेपिटेशन के बाद उसका इफेक्ट कम होने लगता है डोपामीन का, तो फिर और बड़ी डोज दी जाती है। दैट्स व्हाट दे डू। जब उनकी एल्गोरिथम्स होती हैं तो फिर वो वापस अपने एप्स भेजते हैं डोपामीन लैब्स में, और वो डोपामीन लैब्स जो हैं फिर उसको और नेगेटिव बनाती हैं ताकि आप और एडिक्ट हो जाए उससे। करेक्ट? जितने ब्रांड्स हैं दुनिया के, जितने ब्रांड्स हैं, सिर्फ हिंदुइज्म, इस्लाम और बुद्धिज्म या सिखिज्म सिर्फ यही ब्रांड्स नहीं है, ब्रांड्स तरह तरह के होते हैं। वो सारे ब्रांड्स चाहते हैं आप मुझे खरीदो। दे आर स्क्रीमिंग बाय मी, बाय मी, बाय मी, बाय मी। और देखिए आज आपके पास 99% ऐसी चीजें होंगी घर में आपके पास जो आप कभी यूज भी नहीं करती होंगी, साल में एक बार देखा भी नहीं होगा उनकी तरफ, लेकिन आपके घर में होंगी। आपके दिमाग में वो थॉट्स, वो चीजें, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन होगी जिसका आपको कुछ लेना देना नहीं है, जिससे आपके जीवन में 1% कोई फायदा नहीं होता उससे। आप अपनी पूरे दिन में 90% ऐसे काम करते होंगे जिसकी आपको कोई जरूरत ही नहीं है करने की। मैं एडवर्टाइजिंग का बंदा हूं। एवरीबडी वॉन्ट्स योर माइंड शेयर। योर माइंड टुडे इज द मोस्ट वल्नरेबल एंड थ्रेटेंड एंटिटी, और हर आदमी चाहता है कैसे आप सवाल ना पूछें, आप डम्ब हो जाएं। इसे कहते हैं डंबिंग डाउन। सिनेमा में सिस्टमैटिकली किया जाता है, एडवर्टाइजिंग में सिस्टमैटिकली किया जाता है। कोई एडवर्टाइजिंग का स्टूडेंट होगा, थ्योरी में पढ़ाया जाता है हाउ टू डम्ब पीपल। फिल्म मेकिंग में सिखाया जाता है हाउ टू डम्ब पीपल। और पॉलिटिशियंस तो अगर डम लोग नहीं होंगे तो वो जिंदा कैसे रहेंगे? रिलीजियस गुरुज, मोटिवेशनल गुरुज, अगर आप डम नहीं होंगे तो आपको इनकी जरूरत ही क्यों पड़ेगी? एक हेल्दी आदमी डॉक्टर के यहां जाएगा ही क्यों? करेक्ट? ये एक बहुत बड़ा माफिया है, ये एक बहुत बड़ा माफिया है, ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है, पर ये दुनिया की रियलिटी है। और इसीलिए पूरे विश्व के जितने भी सिविलाइजेशंस हैं, सिर्फ 2 ही सिविलाइजेशंस हैं, एक ग्रीक और एक भारतीय। हमारे यहां पहले चालू हुआ, उनके बाद में। तो हमने एक विद्या रखी जिसका नाम है शास्त्रार्थ। शस वर्ड से आता है जिसका मतलब है लर्निंग। और ये लर्निंग कैसे आती है? एक्सपेरिमेंटेशन से। और ये एक्सपेरिमेंटेशन क्या है? एक्सपेरिमेंटेशन लैब में खड़े होकर एक्सपेरिमेंट करने का नहीं है। इस एक्सपेरिमेंटेशन का नाम है लाइफ, जिंदगी के लैब में खड़े होकर एक्सपेरिमेंट करने का। क्योंकि आप किसी भी स्कूल कॉलेज में जाएंगे, आपको 2 चीजें कहीं नहीं पढ़ाएंगे, और जो इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है, सारी जिंदगी आदमी इन्हीं 2 चीजों के ऊपर परेशान रहता है, हाउ टू लिव एंड हाउ टू लव। और यही 2 चीजें आपको दुनिया में कोई नहीं बताएगा, और 24 घंटे लोग कोशिश करेंगे आपको कंफ्यूज रखा जाए। यही कारण है कि दुनिया में सबसे ज्यादा किताबें जो हैं वो लव और लाइफ पे बिकती हैं। आप एक किताब पढ़िए तो आपको लगेगा ये सही है, वो पढ़िए तो लगेगा ये सही है। करेक्ट? इसीलिए, और तीसरी चीज तो आपको मैंने 2 चीजें बताई। धर्म का मैंने आपको बताया, जिसको आप सनातन धर्म बोलते हैं, मैं बताना भूल गया था। ये सनातन वर्ड क्या है? ये क्वालिटी ऑफ धर्म है। कोई भी वो धर्म जिसकी वैल्यू इटर्नल है, जैसे ग्रेविटी इटर्नल है, इसी तरह से अगर मैं आपको देख के मुस्कुराऊंगा तो आप भी मुझे पलट के मुस्कुराएंगे। अगर मैं आपको लगातार सत्य बोलूंगा तो आप कितने भी झूठे और मक्कार हो, थोड़े दिन में आप भी मुझसे सत्य बोलने लगेंगे। ये इटर्नल लॉ है, मतलब ये हर समय रहेगा धूप की तरह। तो जो कैसे पता चले जो मैं कर रहा हूं वो धर्म है कि अधर्म है? तो जो इटर्नल है, राइचियसनेस, वो धर्म है। तो सनातन धर्म को जो लोग अडॉप्ट करते हैं वही लोग कह सकते हैं कि मेरा धर्म सनातन है। सनातन इज अ क्वालिटी, एडजेक्टिव, मतलब कि भाई ये कौन है? ये अच्छा लड़का है। राइट? मैं बोलूं ये कौन है, आप ये तो नहीं बोल सकते ये अच्छा है, लड़का है कि लड़की है। तो जो क्वालिफिकेशन होता है वो है सनातन।
ये पॉलिटिशियंस ने सनातनी वर्ल्ड को पॉपुलराइज कर दिया है। इस ट्रैप में ना फंसे, क्योंकि 5-10 साल बाद ये जाके बड़ा आपको एम्बैरेसिंग होने वाला है आपके लिए। हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं, ये हमारी आइडेंटिटी है, और हम उस धर्म को मानते हैं जो सनातन है। ये पिछले 5000 साल से सत्य था, पिछले कुछ वर्षों से इसको पलटा गया है, जो सही नहीं है। मुझे लगता है ये गलत है, और इसके कारण लोग जो हैं, धर्म को हम लोग धीरे धीरे उसका जो स्तर है, धर्म का जो डिस्कशन है, उसको नीचे लेके आ रहे हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार पूरी महाभारत ध्यान से पढ़िए, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत सारे सवालों का जवाब मिलेगा। तो दूसरा मैंने आपको बताया क्रिटिकल थिंकिंग। एज अ स्टूडेंट आपका पहला धर्म होना चाहिए टू गेन नॉलेज, और हाउ टू गेन नॉलेज, उसका तरीका है यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस। करेक्ट? कोई कुछ भी बताया आपको, आप सोशल मीडिया में भी इतनी फोटो आती हैं। अभी मेरे को किसी ने भेजा, मैं आ रहा था, मेरा दोस्त है, कहता ये देखो भारत का द्वारका एक्सप्रेसवे। मैंने देखा तो मैंने कहा इतना खूबसूरत लग रहा है, मैं 24 घंटे ट्रैवल करता हूं, मैंने तो कभी नहीं देखा। मैंने देखा उसमें कम से कम 2.5-3 मिलियन व्यूज थे उसके। तो मैंने देखा ध्यान से, वो चल रहा है बहुत आजकल सोशल मीडिया में, आप देखिए। मैंने ध्यान से देखा तो उसमें सारी गाड़ियां जो हैं वो राइट साइड पे चल रही हैं, हमारी गाड़ियां तो लेफ्ट साइड में चलती हैं। फिर मैंने उसको कॉपी किया, मैंने उसको गूगल के अंदर डाला तो चाइना का कोई हाईवे निकल आया, जो कि आज से 20 साल पहले का बना हुआ है। करेक्ट? और मैं गारंटी करता हूं आप लोग भी इस तरह की बहुत चीजें फॉरवर्ड करते हैं, ये करते हैं। मैं भी कई बार कर देता हूं गलती से, विश्वास हो जाता है अरे भाई ने बोला है तो सही होगा, लेकिन अब नहीं करता हूं। आई चेक एवरीथिंग। सो क्रिटिकल थिंकिंग इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड द थर्ड थिंग इज, हमारे यहां बात की गई है चरित्र निर्माण की। ठीक है? एक मां का क्या कर्तव्य है, मैं पहले आपको ये बता दूं मेरी क्या भावना है। मैं ऐसा सोचता हूं कि हम लोग मैन ऑफ द ईयर, इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ द ईयर, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर ऐसे अवार्ड्स देते हैं, और टाइम मैगजीन, इंडिया टुडे के उस पर छपती है, लोग जाते हैं, बड़ी तालियां बजती हैं। पर एक ऐसा व्यक्ति है या ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कभी किसी ने सेलिब्रेट नहीं किया, और दुनिया में सबसे बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग वही करते हैं। बाकी देश में भी करते होंगे, लेकिन मैं जिनको जानता हूं उनकी बात कर रहा हूं, वो हैं आपके मां बाप। किस लेवल का त्याग और तपस्या इस जनरेशन तक तो मां बाप करते आए हैं, आगे पता नहीं मुझे क्या होगा, पर जहां तक मुझे दिख रहा है ऐसा एक भी व्यक्ति है यहां पे बैठा हुआ जो ये कह सके मेरे मां बाप ने मेरे को बनाने के लिए त्याग नहीं किया है। कोई तो हाथ उठाओ, है कोई? दुनिया में सबसे कठिन कोई चीज अगर करनी है, सबसे कठिन, वो है त्याग। क्या आप अपने मां बाप के लिए उतना त्याग कर सकते हैं जितना उन्होंने आपके लिए किया है? वो मां जो खुद अच्छा खाना नहीं खाती, आपको खिलाती है, जो खुद अच्छी साड़ी नहीं पहनती, मेकअप नहीं करती, फिल्में देखने नहीं जाती। आप बोलो मां बीमार हो, चलो डॉक्टर क्या कहती, नहीं 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 हम ये खा लेंगे, वो चूरन कर लेंगे, ये कर लेंगे, फलाना हल्दी खा लेंगे, ठीक कर लेंगे अपने आप को। क्यों? इसलिए नहीं कि उसे नहीं पता है डॉक्टर के जाने से उसे फायदा होगा, पर उसे लगता है डॉक्टर के जाऊंगी तो खर्चा होगा, एक दवाई बताएगा, ये टेस्ट बताएगा, थोड़ा कर करा के काम चला लेते हैं, ये पैसा बच्चे के काम आ जाएगा। यह त्याग। अपने अरमानों को, अपने एम्बिशंस को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को दबा देना किसी और के चरित्र के निर्माण के लिए। हिंदुस्तान में आपको कितनी माएं मिलेंगी, जगह जगह सक्सेसफुल हो, एरोनॉट्स हो, आर्मी में हो, किसी भी फिल्मों में हो, बच्चे होते हैं काम छोड़ देती हैं। कौन कर सकता है ये काम? अपना लाइफ का एम्बिशन, पूरी जिंदगी एक बच्चे के चरित्र के निर्माण के लिए दे देना, यह है इंडियन नॉलेज सिस्टम। हमने ये माना है जिसको आज नेशनलिज्म आप लोग बोलते हैं, और सारी दुनिया गाली देती है हमें नेशनलिज्म को लेके, क्योंकि उस नेशनलिज्म को जोड़ते हैं हिटलर के नेशनलिज्म से। वेस्टर्न नेशनलिज्म अलग रहा है। हमारे यहां राष्ट्रवाद का मतलब हमेशा माना गया है चरित्र का निर्माण, राष्ट्र के चरित्र का निर्माण करना है, और वो राष्ट्र के चरित्र का निर्माण तभी हो सकता है जब इस राष्ट्र में पैदा होने वाले हर बच्चे के चरित्र का निर्माण हो। करेक्ट?
तो तीसरी बात, जो कोई आपके चरित्र के निर्माण में योगदान नहीं कर रहा उसकी बात तो सुनना ही नहीं, वो आपके किसी काम का ही नहीं है। तो अब आप देखिए, अगर इसको आप अपनी लाइफ का धर्म बना लें कि जो मेरे चरित्र का निर्माण नहीं कर रहा और मैं किसी और के चरित्र के निर्माण में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूं, वो नेशनलिज्म है ही नहीं। तो आप देखिए आपकी जिंदगी से क्या क्या गायब होगा, खुद ही सोचिए। अभी बैठे बैठे लिस्ट बनाइए। सबसे पहले तो मीडिया आउट हो जाएगा, पॉलिटिशियंस आउट हो जाएंगे, ये रिलीजियस गुरुज आउट हो जाएंगे, ये सो कॉल्ड स्पिरिचुअल एंड मोटिवेशनल गुरुज आउट हो जाएंगे। इनमें से कोई आपके चरित्र का निर्माण नहीं कर रहा। आपके चरित्र का निर्माण कैसे होता है, पहले तो ये समझिए। आपके सबसे पहला चरित्र की निशानी क्या है? सबसे पहले चरित्र की निशानी यह है अपने ज्ञान से उजाला करना। तो उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। समझ में आया आपको कैसे सब चीजें जुड़ी हैं एक दूसरे से? अगर आपके पास ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान का मतलब पीएचडी नहीं है, ज्ञान का मतलब अगर आपको यही पता है कि लव इज नॉट फॉर वन, इट्स फॉर मैनी। मैं आपको एक छोटा सा ज्ञान का उदाहरण देता हूं, उस ज्ञान ने क्या क्या पैदा किया। एक हिंदू नॉलेज सिस्टम में कॉन्सेप्ट है अनेकांतवाद। यहां कोई जैन बच्चे बैठे हैं, जानते हैं आप अनेकांतवाद क्या होता है? नहीं पता। देखिए, आप उनको ही नहीं पता। जिस पूरा आधार जैनिज्म का जो है, वो हिंदू फिलॉसफी में कॉन्सेप्ट है अनेकांतवाद। आप समझ गए होंगे, अनेक का मतलब मैनी। तो जब ये डिस्कशन चला कि भाई ये हिंसा क्या होती है, हिंसा क्या होती है, क्या जानवर को मारना हिंसा है? नहीं, अगर जानवर को नहीं मारेंगे तो खाएंगे कैसे? ये वीगन लोग जो आजकल बात करते हैं, बेवकूफी की बात है। हजारों लाखों करोड़ों मधुमक्खियों को मार देते हैं हनी के लिए, लेकिन कहते हैं कि बड़े जानवर को, उनका यह है कि जो जानवर बड़ा दिखता है उसको मत मारो, ये छोटे कीड़े मकोड़ों को तो मार ही सकते हैं, ये प्रकृति की देन थोड़ी है तो मारने के लिए बने। ये हिपोक्रेसी है। तो हमारे यहाँ उन्होंने बोला कि भाई अनेकांतवाद क्या होता है? अनेकांतवाद ये है कि दुनिया में जितने लोग हैं, समझिए 7.5 अरब लोग रहते हैं, सत्य, उनका सत्य ढूंढने का जो मार्ग है, मतलब उनका ज्ञान की तरफ जाने का जो मार्ग है, वो सत्य है। जितने भी लोग हैं उनका सत्य तक जाने का जो मार्ग है वो सत्य है। डिनाइंग दैट ट्रूथ इज वायलेंस। मतलब अगर आप सत्य की राह में, धर्म के राह में जाके ज्ञान की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, आपको जो रास्ता अच्छा लगता है आप वो सही है, बशर्ते आप ज्ञान की तरफ जा रहे हो, अज्ञान से ज्ञान की तरफ जा रहे हो। यह कहना कि तुम्हारा तरीका गलत है और मेरा तरीका सही है, यह सबसे पहला हिंसा की निशानी है। करेक्ट? उसी अनेकांतवाद से जैनिज्म पूरा निकला बाहर, पूरा वहीं से निकला। दूसरी तरफ जो ध्यान का कॉन्सेप्ट था, ध्यान का मतलब मेडिटेशन नहीं होता, ध्यान का मतलब फोकस नहीं होता, ध्यान का मतलब रिफ्लेक्शन नहीं होता। जो पूरा ध्यान का कॉन्सेप्ट था उससे बुद्धिज्म पनप गया और वो पूरे ईस्ट में गया, पूरे ईस्ट की कायाकल्प कर दी उसने। मैंने आज सुबह एक ट्वीट किया था, एक शब्द है, हम हमेशा कहते हैं यस और नो, बाइनरी, ट्रूथ और अनट्रूथ, पर इन दोनों के बीच में भी एक शब्द है, एक स्थिति होती है, एक स्टेट है जहां सत्य भी है असत्य भी है। क्योंकि जो शब्द है, भाषा है, ये सिर्फ रियलिटी को अप्रोक्सीमेटली डिफाइन कर सकती है। लैंग्वेज कैन नेवर टेल यू द रियलिटी, लैंग्वेज इज जस्ट द अप्रोक्सीमेशन ऑफ रियलिटी। तो उसके बीच में एक स्थिति है जिसको हमने मुनि का नाम दिया, द साइलेंट सेज, जो मौन चुप रहता है, उस सेज को मुनि बोलते हैं। वो स्टेज क्या है कि वो मौन इसलिए करता है कि शब्द जो हैं वो डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते जिस स्टेट को वो जानता है, इसलिए वो मौन रहता है, जहां शब्दों का अर्थ ही खत्म हो जाता है। ये हमारा ज्ञान था, जिसको फिर बुद्धिज्म ने शाक्य मुनि के नाम से चले और चलते चलते वो पहुंचे जापान। फाइनली जापानीज में उनने वर्ड है म्यू, मुनि से म्यू, MU ने उसको अडॉप्ट किया। और दूसरा ये वर्ड पहुंचा ग्रीस, ग्रीस में जो है वो मुनि बन गया वहां जाके मिस्ट्री और मिस्टिक, मतलब जो हम जानते नहीं, जो वर्ड्स डिस्क्राइब नहीं कर सकते। आज वर्ल्ड के टॉप मैनेजमेंट में म्यू पढ़ाया जाता है। MBAs में मैं हार्वर्ड में पढ़ता था, दैट्स वेयर आई लर्न, मुझे यहां रह के पता ही नहीं था। इतनी बड़ी हमारी ज्ञान की देन है और वो आज जापानीज लोग पढ़ा रहे हैं अमेरिका में, हार्वर्ड में और स्टैनफोर्ड में, हमारे यहाँ किसी को पता नहीं। हमारा बच्चा बैठा है, वो जैनिज्म अभी लड़ जाएगा, अगर कोई पॉलिटिशियन उसमें आग लगा दे तो वो जैन जाके किसी और से लड़ जाएगा, हिंदू से ही लड़ जाएगा, सिख से ही लड़ जाएगा, उसको आइडेंटिटी, लेकिन उसको यही नहीं पता कि उसका आधार क्या है। तो अपने रूट्स को समझना
टू नो योर रूट्स, दैट्स योर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के लिए किसी से लड़ना नहीं, उस आइडेंटिटी को कैसे ज्ञान का प्रकाश बना के उजाला फैलाना, ये जो है ये आपकी तीसरी सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए। अब लास्ट में आपको बताता हूं नेशनलिज्म के बारे में। ये नेशनलिज्म को लेके हम लोगों ने इतना डंका पीट रखा है। ये नेशनलिज्म होती क्या है आप बताइए। एक ट्रेन आती है या बस आती है, उसमें एक एक करके सबसे पहले हैंडीकैप लोगों को चढ़ने दें, उसके बाद प्रेग्नेंट औरतों को चढ़ने दें, बच्चों वाली महिलाओं को चढ़ने दें, बड़े बूढ़ों को चढ़ने दें और खुद लास्ट में चढ़ जाएं। ये नेशनलिज्म है। आप नेशन का कैरेक्टर डेवलप कर रहे हैं, लेकिन धक्का मुक्की करके कैसे भाग के सीट ले ली जाए, इसको धक्का मारो उसको धक्का मारो। जो आप प्लेन में देखते हैं, मैं देखता हूं लोग बैठे बैठे खूब नेशनलिज्म पे ट्वीट करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं चलो ये करते हैं, और जैसे ही प्लेन रुकता है धक्का मुक्की वो गिरा रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, बुढ़ा गिर रहा है, बच्चा गिर रहा है, किसी को होश नहीं। वो एयरलाइंस में नाम नहीं लूंगा, इतने बड़े बड़े नेशनलिज्म के ऊपर एड्स निकालते हैं, और उसी दिन सेम 15 अगस्त 26 जनवरी की फ्लाइट लीजिए तो उनके लोग कैसे आपसे बात करते हैं। ये नेशनलिज्म कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप तिरंगा लेके बोल दें नेशनलिज्म है। उस तिरंगा को पकड़ने के पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका एज अ सिटीजन क्या क्या फर्ज है, क्या क्या धर्म है, और आप क्या क्या निभाते हैं, क्या क्या नहीं निभाते हैं। छोटी छोटी चीजें जो हैं उनसे नेशनलिज्म बढ़ती है। इंटेग्रिटी, ये नेशनलिज्म की पहली निशानी है। आपने किसी को टाइम बोला मैं इतने बजे पहुंचूंगा, क्या आप पहुंचते हैं उस टाइम पे? अगर आप नहीं पहुंचते हैं तो आप नेशनलिस्ट नहीं है, बिकॉज आप देश का प्रोडक्टिव टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपने किसी को बोला कि मैं तुम्हारे पैसे 15 तारीख को दे दूंगा, तो क्या आप 15 को देते हैं? अगर आप नहीं देते हैं तो आप नेशनलिस्ट नहीं है। क्या आप अपने घर का कचरा उठा के बाहर फेंक देते हैं, अपना घर साफ रखते हैं, दूसरे का नहीं? क्या अपनी चीजें छोड़ के जाते हैं? ऐसा तो यहां कोई भी एक नहीं होगा जो कभी जाता हो बाहर पिकनिक पे या कहीं और वहां पैकेट्स और बॉटल्स या सिगरेट के पैकेट ना छोड़ के आता हो। किस नेशनलिज्म की हम बात करते हैं? नई ट्रेन चलती हैं वंदे भारत, क्या वो ट्रेनों को लॉन्च करना नेशनलिज्म है या उनका ख्याल रखना नेशनलिज्म है? हम जब जापान में जाते हैं तो सब लोग यही कहते हैं, अरे कमाल की कंट्री है यार, इन्होंने अपना कल्चर क्या मेंटेन किया है। जापान से मिलियन टाइम्स ज्यादा कल्चर इस देश में, पर दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? हर जगह शोर, हुल्लड़, भीड़, धक्का मुक्की, गाली गलौज। वहां जब ट्रेन आती है हमसे ज्यादा लोग खड़े होते हैं ट्रेन के इंतजार में, लेकिन आवाज नहीं आती एक शब्द। क्यों? उनको यह लगता है कि हम शोर करेंगे तो दूसरा डिस्टर्ब हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसे जाके काम करना है तो वो इरिटेट होकर अगर काम में पहुंचेगा तो काम अच्छा कैसे करेगा, काम अच्छा नहीं करेगा तो हमारा देश की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी तो देश कैसे उन्नति करेगा। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि आपको सब लोग जो हैं, कोई पॉलिटिशियन, कोई रिलीजियस लीडर, कोई आपको नहीं बताता कि जो शब्द का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, धर्म, नेशनैलिटी, नेशनलिज्म, कल्चर, आइडेंटिटी, शास्त्र, पुराण, इसका अर्थ क्या है? ये कौन सा पुराण है जिसको सब शास्त्र और पुराण, आपने 2 शब्द पिछले 10 साल में बहुत सुने होंगे, सब पाखंडी लोग यूज करते हैं। जो शास्त्र पुराण जानता है अपने जीवन में इंप्लीमेंट करेगा, आपको क्यों ज्ञान पेलेगा? और पूछ लीजिए ये है क्या, कोई जानता भी नहीं है। वेदों की हम बात करते हैं, वेद क्यों इतने अच्छे हैं? क्योंकि वेद के अंदर जो उपनिषद है, वेदांत जो है, वो हमारी फिलॉसफी है। और वो क्या है? वो सिर्फ एक वर्ड है, एक सूत्र है जिसको कहते हैं तत्वम असि। ये लास्ट बात बता रहा हूं आपको 5 मिनट। ये जो पूरा नॉलेज सिस्टम है, इसका जो आधार है वो है तत्वम असि। इसको समझ लीजिए आप, सारी दुनिया में आज डुअलिटी है, तुम ये हो मैं ये हूं, तुम ये हो मैं ये हूं, और लड़ाई चल रही है। आप हमारे यहाँ नहीं, सारी दुनिया में चल रही है। अब तो इलेक्शन टाइम में किस कदर की सब लोग सुन रहे हैं मुझे, मैं जानता हूं इस खत्म होने के बाद क्या करने वाले हैं। बाहर निकलेंगे, अपना फोन लगाएंगे, इधर का उधर, इधर का उधर, और जो लड़ाई मारा पीटी और जो चल रहा है दुनिया में इतना, उसमें और आग लगा देंगे। उस आग में शामिल ना होना ये नेशनलिज्म है, ये आपका धर्म है। अब बताओ कितने लोग धार्मिक हैं यहाँ? अब मुझे बताओ कितने लोग अब ईमानदारी से सरस्वती को साक्षी मान के अपने दिल पे हाथ रख के, हाथ उठा के, वो आदमी हाथ उठाए जो कहे मैं धार्मिक हूं या मैं सनातनी हूं। उठाए?
वो लोग हाथ उठाएं जो कहें मैं नेशनलिस्ट हूं, ट्रू नेशनलिस्ट हूं। आप 100% नेशनलिस्ट हैं? हां, यह समस्या है। हम सब लोगों ने एक ओढ़ा हुआ व्यक्तित्व जो है वो कर लिया है, और यही कारण है कि आज सारी दुनिया में क्लेश है। और इस क्लेश को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, और वो सिर्फ हमारे पास वो कुंजी है, वो हमारे पास वो नॉलेज है जो कहती है तत्वम असि, वननेस। इसका अर्थ यह है कि तुम ही ईश्वर हो, तुम ही वो हो जिसकी तुम उपासना करते हो। लेकिन चूंकि तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, तुम सुपरफिशियल लेवल पे जिंदा हो, इसलिए तुम अपने अंदर के डिवाइन, अपने अंदर के गॉड को नहीं समझ पाते हो। ओनली व्हेन यू स्टार्ट डूइंग गॉड लाइक थिंग्स, और जब तुम ज्ञान की तरफ पहुंचते हो, देन यू फाइंड दैट यू आर द गॉड। इसीलिए माया शब्द का मतलब यह है, जो तुमको लगता है तुम ईश्वर नहीं हो, ईश्वर तुमसे अलग है, वो ही तो माया है। जैसे आप ये सोने का बैंगल पहन रखा है उन लड़कियों ने, वो बैंगल, मैं पूछूंगी क्या पहना है बेटा, तुम बोलोगी बैंगल, लेकिन मैं कहूंगा ये तो सोना है। समझ में आया? जो बैंगल पहना है वो गोल्ड है, तो गोल्ड इज द ज्ञान। ये जो है कि ये बैंगल है, इज ज्ञान, क्योंकि इसका एक लेबल है, फॉर्म है, मैंने नाम दे दिया इसको, इसलिए आपको लग रहा है ये अलग है। तो मैंने जैसे ही बोल दिया विवेक अग्निहोत्री, मैं ईश्वर से अलग हो गया, मैं ही तो वो ईश्वर हूं। अब मैं टू फिनिश इट, क्वांटम फिजिक्स आज जो है, पार्टिकल साइंस जो है, वर्ल्ड की जो लेटेस्ट साइंस एंड डिस्कवरीज हैं, वो क्या कहती हैं? वो भी तो यही कहती हैं कि जो द पावर ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन योर बॉडी, आपका जो सेल, उसमें जो पावर है दैट इज इक्वल टू द पावर ऑफ द एंटायर कॉस्मोस। मतलब उसमें भी वही ताकत और क्षमता है जो कि जिसको आप ईश्वर मानते हैं, उसकी जो क्षमता है। यू आर द कॉस्मोस, तुम ही तो वो सृष्टि हो। शिवा तुमसे अलग नहीं है, तुम ही तो वो शिवा हो। किस मंदिर में जाने की जरूरत है तुम्हें? तुम ही तो वो मंदिर हो। तो इसके लिए डू गॉड लाइक थिंग्स, एंड द ओनली गॉड लाइक थिंग्स इज धर्म। धर्म मीन्स मूविंग फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज। मैं आपसे जब आज बात कर रहा हूं, मैं ऐसी बातें कभी नहीं करता, आज पहली बार मेरी कोई स्पीच सुन लीजिए आप, मैं कभी, और मैं आपका हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, एक प्रोफेसर ही इतनी अच्छी शिक्षा दे सकता है जिनका खुद का चरित्र बहुत स्ट्रांग हो। आपने मुझ पर जिम्मेदारी डाली तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इधर उधर की खुश करने वाली बातें, तालियां पिटवाने वाली बातें नहीं करनी चाहिए। वो मैं करूं तो आप 1 घंटा ताली ही बजाते रहेंगे, वो बड़ा ईजी है, करेक्ट। लेकिन दिस इज वॉट यू शुड डू। टू एंड, मैं आपसे एक ही लास्ट में एक बात कहना चाहता हूं, बिलीव इन योरसेल्फ। आपको किसी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक मुल्ला नसरुद्दीन हुआ करते थे। मुल्ला नसरुद्दीन जो थे वो एक टर्किश फिलोसोफर था जो खुद अपने ऊपर मजाक उड़ाता था, खुद को डम बताता था और बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स फिलोसफीज को आपके सामने लाता था। तो एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन एक लैंप पोस्ट के नीचे खड़े होके कुछ ढूंढ रहे थे। तो गांव वाले निकले, उन्होंने कहा मुल्ला क्या ढूंढ रहे हैं? तो मुल्ला ने कहा यार घर की चाबी खो गई है, वो ढूंढ रहा हूं। तो गांव वाले ने कहा मैं मदद करा देता हूं, मैं भी ढूंढता हूं आपके साथ। तो लैंप पोस्ट के नीचे होके गांव वाला आ गया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा, धीरे धीरे पूरा गांव आ गया और मुल्ला के घर की चाबी ढूंढने लगा। फिर सुबह हुई, धूप निकली, रोशनी हो गई, पूरा गांव जो है वो धूप से जगमगा गया। मुल्ला वहां से निकल के जाने लगे। किसी ने कहा मुल्ला आपकी चाबी ढूंढ रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं? कह लगे चाबी लेने। कह लगे चाबी लेने कहां? कह लगे इसका क्या है मियाँ कि वो चाबी जो थी ना वो पीछे बगीचे में खो गई थी, तो मैं वहां उठाने जा रहा हूं। तो कह लगे तो फिर रात भर हम यहां क्यों ढूंढ रहे थे? कह लगे रोशनी तो यहां पे थी, वहां अंधेरा था। थैंक यू, आप समझ गए, बड़ी अच्छी बात है। मैं आपको बहुत दिल से प्यार करता हूं। अगर मेरा दिल किसी चीज के लिए धड़कता है तो सिर्फ एक चीज के लिए कि कैसे इंडिया के स्टूडेंट्स जो हैं, इंडिया का जो यूथ है, जो हम लोग, हमारे प्रोफेसर विक्रम जी की जिंदगी में, मेरी जिंदगी में नहीं हो पाया, कैसे हम ये करें कि हम वर्ल्ड के सबसे क्रिएटिव इनोवेटर्स बन सकें। अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं रहा है, और वो इसलिए हो रहा है कि हर कोई आके आपको बता रहा है कि रोशनी यहां है, चाबी यहां होगी। आप सब लैंप पोस्ट के नीचे चाबी आपको लोग ढूंढवा रहे हैं। मैं चाहता हूं अपनी चाबी तुम खुद ढूंढो, चाहे वहां अंधेरा हो।
और जिस दिन तुम चाबी ढूंढ लोगे उस अंधेरे में, जिस दिन वो चाबी जिस जगह पे तुम ढूंढ लोगे, रोशनी वहीं हो जाएगी। और ये छोटा सफर नहीं है, ये बहुत लंबा सफर है। हो सकता है पूरी जिंदगी बीत जाए और तुम ना ढूंढ पाओ, पर तुम्हारे बच्चे ढूंढेंगे। कम से कम कोशिश तो करो। दुष्यंत कुमार ने कहा है, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और अंत में मैं दुष्यंत कुमार के ही शेर से ख़त्म कर देता हूँ, और ये मैं आपको फूड एक आप सोच सके इसलिए एक थॉट दे के जा रहा हूँ। आज की जो स्थिति है उसके बारे में इस शेर से आप बहुत सीख सकते हैं। एंड बिलीव यू मी, अगर इस शेर को ध्यान से सुनेंगे तो हो सकता है आपको सत्य और असत्य के बीच में, ज्ञान और अज्ञान के बीच में कुछ फ़र्क नज़र आए। दुष्यंत कुमार ने लिखा था सन 1973-74 में, बड़ा मैं उनके करीब था, उनके बच्चे और हम सब बड़े हुए साथ में। दुष्यंत कुमार ने लिखा था, इतने इश्तहार चिपके हैं दीवार पे कि कोई दरार नजर नहीं आती। मतलब समझ में आया कुछ? सोचना, पढ़ना है इसके बारे में। इश्तहारों को मत देखो, दरारों को ढूंढो और अपने ज्ञान से उन दरारों को बढ़ो, उन दरारों को ठीक करो। यही नेशनलिज्म है, यही धर्म है, यही भारतीयता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अगर टाइम हो तो कुछ सवाल ले सकते हो। व्हाट्स द टाइम? टाइम क्या हुआ बेटा? व्हाट्स द टाइम? कोई टाइम बता सकता है? हाँ, तो अभी तो टाइम है। तो नेक्स्ट हाफ एन आवर आई कैन टेक क्वेश्चंस, हुएवर वांट्स, एक एक करके वी कैन आस्क क्वेश्चंस। एंड विद मी फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन ऑन एनीथिंग अंडर द सन, एनीथिंग, इवन द टैबू सब्जेक्ट्स, आई हैव नो प्रॉब्लम्स। नमस्ते सर, मेरा नाम रोहित आर्या। और सर आपने फिलॉसफी के बारे में बहुत कुछ बताया। तो मैंने एक फिलोसोफर के बारे में पढ़ा था, उन्होंने बोला था कि आप कितने भी फिलोसोफर आ जाएं लेकिन लास्ट फिलॉसफी जो रहेगी वो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आपने वो जो बताया कि अब जो इतने सारे फिलोसोफर आते हैं तो वो फिलोसोफर क्यों नहीं समझते कि सनातन ही सत्य है, वो अपना दिमाग जो है अननेसेसरी फिलोसफी में क्यों लगाते हैं? तो मैंने इतनी देर भाषण दिया, उसके बाद भी आप कह रहे हैं सनातन ही सत्य है। सत्य सनातन हो सकता है, सनातन कैसे सत्य हो सकता है? सर मीन्स वही कि सनातन मतलब सनातन का मतलब ही सत्य है सर। और सनातन का मतलब सत्य नहीं है। सत्य सनातन हो सकता है। यार तुम्हें मतलब ही नहीं पता है, क्यों सवाल पूछ रहे हो? ये रटा रटाया पैरेट की तरह मत पूछो। सनातन का मतलब होता है इटर्नल। करेक्ट? करेक्ट। क्या चीज इटर्नल है? इटर्नल क्वालिटी होती है ना। इटर्नल तो कोई अपने आप हवा तो नहीं हो सकती। इटर्नल वो क्या चीज है जो सत्य है? जी सर। सत्य कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं, क्या चीज है जो सत्य है? आप जिंदा हैं, ये सत्य है कि नहीं है? 100% सर। क्या ये सनातन सत्य है? बिल्कुल सर, सनातन है। आप जिंदा हैं, ये सनातन सर सनातन मतलब सत्य ही तो है। तो मतलब ये सनातन नहीं है। ये रटी रटाई आप पॉलिटिशियंस की सिखाई हुई बात बोल रहे हैं आप। देखिए मैं यहां खड़ा हूं नॉलेज सिस्टम की बात करने। मैं नॉलेज प्रोपेगेंडा की नहीं। जो नॉलेज है वो सत्य है। आप कैसे केमिस्ट्री का फॉर्मूला कैसे बदल सकते हैं आप? ओके सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट नहीं, उसी सवाल को सही करते हैं। आप जानना क्या चाहते हैं पहले ये पूछिए। ओके सर, मैं बस इतना ही जानना चाहता था कि हमारे करीब पिछले 5000 साल पहले एक ही चीज हुआ करती थी जो कि हमारे। हाउ डू यू नो 5000 साल पहले? सर मीन्स सर मैंने कहीं पढ़ा था या सर। वेयर डिड यू रीड इट? सर आई डोंट नो सर। इफ यू डोंट नो देन सिट डाउन एंड गेट टू नो। सर भाई ये क्रिटिकल थिंकिंग है। यूनिवर्सिटी में खड़े होकर भी मैं ऐसी बातें नहीं करूंगा। सर मैं सुनिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। आप क्या चाहते हैं मैं क्या करूं? मैं यूनिवर्सिटी में खड़े होकर सत्य बोलूं झूठ बोलूं? बताइए। 5000 साल पहले आपको किसने पढ़ाया? क्या आपके किसी प्रोफेसर ने पढ़ाया? कौन सी किताब में पढ़ा आपने? ये आप पॉलिटिशियंस की तरह बात कर रहे हैं मुझसे। 5000 साल पुराना। 10,000 क्यों नहीं? 20,000 क्यों नहीं? 2,500 क्यों नहीं? 3,000 क्यों नहीं? 5000 शब्द कहां से आ गया आपके दिमाग में? आप स्टूडेंट हैं, ऐसा मत करिए। ओके सर, ठीक है। थैंक यू आप सबने, यू हर्ड मी, थैंक यू वेरी मच। एंड वन थिंग, आई विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट. Go and shine in the world.
मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ डॉक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री जी का कि उन्होंने एक बहुत ही शॉर्ट नोटिस के ऊपर हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। एंड वी आर सो प्रिविलेज्ड टुडे, जो ज्ञान उन्होंने आज दिया है, आई एम श्योर हमारे प्रोफेसर्स भी वो ज्ञान नहीं दे पाते हैं। इतना समझाने के बाद भी मेरे स्टूडेंट फिर रिलीजन एक दुविधा में फंसे हुए थे। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल देम दैट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो उसने बात की कि बच्चे खुलेआम नमाज पढ़ रहे थे, मैं उन बच्चे को बुलाया, यही समझाया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर अबव कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओनली टीच यू द रियल धर्म। योर रियल धर्म टुडे इज टू स्टडी, मेक अ करियर, shine yourself, make your parents proud. That is the whole purpose of every educational institution. It's nothing to do with the Hindus or with the Muslim or Sikhism or Christianity. It is your, today you should understand what your dharma is. Your dharma is dham. That means you should make your career. You study here. You have come here to study. मेरी माँ मुझसे कहा करती थी, बेटा तुम्हारा धर्म सिर्फ पढ़ना है, जो तुम बनना चाहती हो जिंदगी में वो बनो। वो आपका सबसे बड़ा धर्म है। ये पॉलिटिकल इश्यूज हैं जिन्होंने आज रिलीजन की लड़ाई को इनमें डाल दिया है। एंड आई टेल यू इज वेरी करेक्ट। एक सिविल वॉर का बहुत बड़ा डर मुझे अंदर सता रहा है, जो नहीं हो जाना चाहिए, और फिर पार्टीशन ना हो जाए हिंदुस्तान का। आप यंगस्टर्स को समझना है कि यू शुड बी अबव एवरीथिंग, यू शुड ऑब्जर्व थिंग, अंडरस्टैंड द रियलिटी। एक क्रिएटिव थिंकिंग को अपने अंदर डेवलप करो। मैं हमेशा कहती हूँ, एक ग्लास है जिसके अंदर पानी है, उसके अंदर मैं और पानी डालूंगी तो उसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होती है। आई ऑलवेज टेल यू, डू नॉट करप्ट योर माइंड बाय टेकिंग यूजलेस इंफॉर्मेशन। इफ योर माइंड इज स्टेबल, डोंट डिस्टर्ब इट। यू शुड हैव द क्रिएटिविटी विद इन योर सेल्फ दैट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। Just don't read the social media and make your perception according to that. Your dharma is to study, nothing else. I think that in this generation, we will forget about the religion. Hindu, Muslim, Sikhism. No, there is nothing like that. And जो लोग एक्टर बनना चाहते हैं या डायरेक्टर बनना चाहते हैं, मैं बता दूं, मैंने एक्सपीरियंस किया मेरी फैमिली में, एक्टिंग सबसे डिफिकल्ट इंस्टीट्यूशन है। इट्स इंस्टीट्यूशन विद इन इटसेल्फ। आप 5 साल MBBS पढ़ते हैं तब डॉक्टर बन पाते हैं ट्रेनिंग के बाद। एक्टिंग स्किल्स, मोस्ट डिफिकल्ट स्किल्स टुगेदर, बिकॉज आई हैव सीन माई डॉटर 5 years just learning the acting skills. It's the most difficult skill, I tell you, to have with. मैं एक बार फिर विवेक रंजन अग्निहोत्री जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। India can! India can! Thank you, goodbye, all the best.